हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। हमारे साथ बैठे हैं परमिंदर सर। हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। अभी हम इसका लेक्चर नंबर 2 करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए थे। अब लेक्चर नंबर 2 में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, what is meant by biodegradable and non-biodegradable materials? Question number 2 है, what is the meaning of 4Rs? Third है, why are plastics considered a threat to our environment? Question number 4 है, what is meant by synthetic fibers? Next है, we prefer nylon ropes instead of cotton or jute ropes for rock climbing. Why? Sixth है, we prefer to buy an acrylic blanket instead of wool blanket. Why? Seventh है, rayon is called an artificial silk. Why? Question number 8 है, how plastics are used in healthcare industry. Next है, we should not wear synthetic clothes while working in the kitchen. Why? Question number 10 है, plastics are poor conductors of heat and electricity. Give examples. Next है, a bucket made of plastic does not rust like a bucket made up of iron. Why? 12th है, name some natural fibers. Next है, a synthetic fiber which looks like silk is obtained by chemical treatment of wood pulp. It is known as artificial silk. What is its common name? 14th है, name some artificial fibers. 15th है, cotton is a natural polymer. What is its chemical name? Next है, terracotta is made by mixing two types of fibers. Write the name of the fibers. Next है, what is PET? 18th है, name the first fully synthetic fiber. Next है, which raw material is used for making synthetic fibers? Next है, name any two thermoplastics. Next है, why is polyester not suitable for summer wear? Next है, name the polymer used in making non-stick cookwares. Question number 23rd है, which is the most suitable material for preparation of handles of cooking utensils? Question number 24th है, which plastic is used for making crockery? 25th question है, which fiber is similar to wool or often used as a substitute to wool? Next है, whether most of the plastics are biodegradable. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, what is meant by biodegradable and non-biodegradable materials? Answer, the materials which get decomposed through natural processes by the action of microbes, bacteria, fungi, etc. are called biodegradable materials. Examples include peels of vegetables and fruits, fallen leaves, animal wastes, etc. The materials which are not easily decomposed by natural processes are called non-biodegradable materials. Examples include plastic, glass, aluminium cans, etc. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम करते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई के एक्शन के द्वारा अपने आप नेचुरली डीकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, हेयर हो गए, पेपर्स हो गए, या ट्रीज से जो लीव्स फॉल होते हैं, गिरते हैं, वो हो गए, या एनिमल वेस्ट। ये सभी एग्जांपल्स बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की हैं। दूसरी तरफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वह होते हैं जो कि कुदरत के प्रोसेस के द्वारा अपने आप जल्दी से डीकम्पोज नहीं होते। इनकी एग्जांपल्स हैं जैसे ये प्लास्टिक के बैग्स हो गए, एल्युमिनियम के कैन्स हो गए,
ग्लास हो गए, या ये कंप्यूटर के हार्डवेयर है, कैबिनेट है, या ग्लास की बोतल्स हैं पानी के, ये सारे जो हैं ये आसानी से कुदरती तौर पर डिकम्पोज नहीं होते, इसलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 आवर्स? आंसर, द फाइनल पर्पस ऑफ 4 आवर्स प्रिंसिपल इज टू रिड्यूस पोल्यूशन। 4 hours are reduction, reuse, recycle, and recover. We must reduce the use of resources as much as possible and save them for the future generation. We must reuse items wherever possible. For example, using both sides of a piece of paper, saving and using plastic grocery bags for future visits, etc. The waste items should be recycled wherever possible. For example, paper can be recycled to produce new paper. Resource recovery means converting waste into resources such as electricity, heat, compost, and fuel through thermal and biological means. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि 4 आवर्स किसे कहते हैं। 4 आवर्स का मीनिंग होता है रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। इनका बेसिक पर्पस जो है जो 4 आवर प्रिंसिपल का वो है पोल्यूशन को कम करना। सबसे पहले बात करते हैं रिडक्शन की। हमें रिसोर्सिस के यूज को रिड्यूस करना चाहिए जहाँ तक हो सके, ताकि जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो उन रिसोर्सिस को यूज कर सकें। नेक्स्ट है रीयूज। हमें उन आइटम्स को रीयूज करना चाहिए जो हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हम पेपर के एक तरफ लिखते हैं तो हमें चाहिए कि हम पेपर के दूसरी तरफ भी लिखें। दूसरी तरफ जैसे हम बाजार जाते हैं तो ग्रोसरी वगैरह प्लास्टिक के बैग्स में लेकर घर आ जाते हैं, तो हमें चाहिए वही प्लास्टिक के बैग्स जब हम दोबारा ग्रोसरी शॉप पर जाएं तो वही प्लास्टिक का बैग दोबारा लेकर चले जाएं, नया प्लास्टिक का बैग दुकानदार से ना लें। नेक्स्ट पॉइंट है रिसाइकल। हमें जो वेस्ट आइटम्स है जहां हो सके उनको रिसाइकल किया जाना चाहिए। जैसे कि पेपर है, जो हम पेपर यूज कर चुके हैं उसको रिसाइकल करके नया पेपर प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब है रिसोर्स रिकवरी की बात, कि हमें जो वेस्ट है उसको रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना चाहिए। कैसे? थर्मल एंड बायोलॉजिकल मींस इट हैपन्स इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, कंपोस्ट, यानी कि वेस्ट मटेरियल से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट, कंपोस्ट और फ्यूल। ये आपके सामने ये 4 आवर्स दिए हुए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। Next, why are plastics considered a threat to our environment? Answer, plastics are non-biodegradable materials. Plastics take several years to decompose. When plastic is burned to get rid of waste, it releases poisonous gases into the atmosphere, causing air pollution. Sometimes animals like cows eat up the plastic material along with leftover food thrown on roadside, which chokes their respiratory system and can be the cause of their death. The plastic bags thrown here and there in the streets and bazaars may block the sewage system. This makes the dirty sewage water flowing into streets or roads, causing many diseases. So plastics are considered a threat to our environment. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि प्लास्टिक को एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट क्यों माना जाता है। इसका आंसर है कि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, यानी कि वो अपने आप कुदरती तौर पर जल्दी से डिकम्पोज होने वाला मटेरियल नहीं है। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में सेवरल ईयर्स लग जाते हैं, बल्कि सेवरल डिकेड्स लग जाते हैं। जब हम प्लास्टिक के ढेर को खत्म करने के लिए उसमें आग लगा देते हैं तो क्या होता है, बहुत सा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। कई बार हम जो लेफ्ट ओवर फूड है वो प्लास्टिक में डालकर सड़कों में फेंक देते हैं, तो क्या होता है, कुछ एनिमल्स जैसे कोज हैं वो लेफ्ट ओवर फूड के साथ जो प्लास्टिक है उसके बैग को भी खा लेते हैं और उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो चौक हो जाता है और जिससे उनकी डेथ भी हो जाती है। कई बार जो हम प्लास्टिक के बैग्स इधर उधर सड़कों में फेंकते हैं वो हमारे जो सीवेज सिस्टम है उसको जाकर ब्लॉक कर देते हैं, जिससे गलियों और बाजारों में
जो सीवेज सिस्टम का पानी है, गंदा पानी, वो बाजार में गलियों में आ जाता है और इससे कई तरह की डिसीजेज के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जो प्लास्टिक है उसको एनवायरनमेंट के लिए एक खतरा माना जाता है। Next time, what is meant by synthetic fibers? Answer. The fibers made by human beings are called man-made or synthetic fibers. Synthetic fibers are used in many household articles, in aircraft, ships, healthcare, etc. They are very strong and durable. They are quite lightweight and less expensive. They do not shrink and absorb very little water. Clothes made from synthetic fibers are easier to maintain. Some examples of synthetic fibers are nylon, polyester and acrylic. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि सिंथेटिक फाइबर्स किसे कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो मैनमेड होते हैं, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। ये कई हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने, एयरक्राफ्ट को बनाने में, शिप और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। आप सोचते होंगे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कैसे यूज होते हैं, जो प्लास्टिक वगैरह हो गए या और कई चीजें हो गई, उनमें हेल्थ केयर में ये यूज होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं और इनका वेट जो होता है ये बहुत कम होता है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, ये जल्दी से श्रिंक नहीं करते। जो कपड़े सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं उनको आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। सिंथेटिक फाइबर की कुछ टाइप्स हैं जैसे रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक। नायलॉन का आपको पता है कि रैकेट्स हो गए स्पोर्ट्स में जो यूज होते हैं, या रॉक क्लाइंबिंग रॉक्स हो गई या पैराशूट रॉप्स हो गई, उनमें नायलॉन को यूज किया जाता है। रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, we prefer nylon ropes instead of cotton or jute ropes for rock climbing. Why? Answer. Nylon ropes are lighter, strong and flexible as compared to cotton or jute ropes. So we prefer nylon ropes instead of cotton or jute ropes for rock climbing. यह क्वेश्चन है कि रॉक क्लाइंबिंग में कॉटन और जूट रोप्स के कंपैरिजन में नायलॉन रोप्स को प्रेफर किया जाता है। वो क्यों? वो नायलॉन रोप्स को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो लाइटर होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो फ्लेक्सिबल होती हैं। इसके अलावा जो फंगस है या मोथ, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो नायलॉन को अफेक्ट नहीं करते, इसलिए नायलॉन की रोप्स को रॉक क्लाइंबिंग के लिए प्रेफर किया जाता है। Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course.